ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ, ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ, ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਾਮ ਆਡਕੋ, ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਦਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੀ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਚਾਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾੜੀਆਂ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਇਸੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮਿਆ, ਪਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ, ਦਇਆ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਗੀ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤੜਫਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਤੇ, ਦਇਆਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 809 ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਰ, ਠੱਗ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਟੁੱਕੇਗਾ। ਅੰਬ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਖਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਚੌਂਕ ਚਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੌਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ। ਕੁਦਮ ਕਰਿਆ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਾਲ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ,
गुरु की संगत विच बैठ के समझना। मारे कहने लगे महिमा है गुरु की संगत दी केड़ी, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। हे मेरे मित्रों, हे मेरे गुरसिख भरावो, हे परमात्मा की रजा के मुताबिक ना चलण वालिओ, एक गल ध्यान नाल सुनो, गुरु की वडियाई की गल सुनो। गुरु की संगत करन वाले नूं लाभ की हुंदा है? मैल खोई। वो मैल विकारां दी, पापां दी, जिहदे कारण साडी जिंदगी विच चिंता है, जिहदे कारण साडी जिंदगी विच दुख हन, जिहदे कारण साडी जिंदगी विच उलझणां हन। भरा दी भरा नाल अज नहीं बन रही, भैण भरा दे नालों हिस्सा वंडा रही है, माँ प्यो दे नाल पुੱਤ दी नहीं बनदी, सस दी नूंह नाल नहीं बनदी। इहदा कारण की है? इहदा कारण है विकारां दी मैल, हौमे दी मैल, लोभ दी मैल, क्रोध दी मैल, काम दी मैल, मोह दी मैल इत्यादि पंजां विकारां दी। और इन्हां पंजां विकारां विचों निकलदे ने ईरखा, चुगली, निंदिया, झूठ, फरेब, धोखा, ठगी इत्यादि ऐब। ये मैल दे कारण है। तो मारे कहंदे जिहड़ी मैल भैणां भरावां विच पाड़े पा के रख रही है, गुरु की संगत कीतिआं सब तो पहला ये मैल धुप जाती है। जिहड़ा गुरु की संगत विच आउण वाला है ना, वो किसी नाल नफरत नहीं करता। अपने सके भैणां भरावां की गल छड्डो, वो सत बगाने का भी बुरा नहीं जे चितवदा। गुरु ऐसा मनोबल, ऐसा ही दृढ़ता, ऐसा आत्मक बल उन्होंने दे दिंदा है। मैल खोई कोट अग हरे। अग का अर्थ हुंदा पाप। चेते रखियो, जो असीं अज कर्म कर रहे हाँ, जे असीं चंगे कर्म कर रहे हाँ तो साडी किस्मत रूपी बैंक दे विच वो स्टोर हुंदे जा रहे हैं। तो जे असीं अज माड़े काम कर रहे हाँ तो साडी किस्मत रूपी बैंक विच वो भी जमा हुंदे। मैं एग्जाम्पल दे के बेनती करांगा। आपां कई बार साडे जो भी साडी जिंदगी 'च अज वापर रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सियाणा है, कोई मूर्ख है, किसी नूं अकल घट है, किसी नूं वध है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई तंदुरुस्त है। जो कुछ भी अज मनुख दे कोल है, ਉਹਦੇ अपने कमाए हुए कर्मां की दौलत है। गुरदेव बाणी विच कहिंदे ने, दद्दा दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजना। हुंदा की असल विच कि मैं जो अज कर रहा हाँ, ये मेरे कर्म ने, इन्हां कर्मां ने स्टोर हुंदे जाना, चंगे जां माड़े। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब विच आपां पढ़दे आ, करमी आपो अपनी, ये कर्म ये लिखत आपू अपनी है, के नेड़े के दूर। कोई अपने शुभ कर्मा करके परमात्मा के नेड़े है, उहदियां बख्शिशां दा पात्र बन रहा है, तो कोई अपने बुरे कर्मां दा करके प्रभु तो दूर है, वो दुखां दियां मुसीबतां दियां दलदलां दे विच धस्या होया पुकारां कर रहा उच्ची उच्ची। मारे कहंदे पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, कोई हाय हाय कर रहा। हुंदा की है? जो जो असीं अज कर्म करी जा रहे हैं, ये साडे स्टोर होंदे जांदे ने। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दियां, जिवें कोई मनुख अज मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा कमा के अपनियां जरूरी लोड़ां पूरियां करके ते वाधू पैसा अपनी बैंक विच जमा करी जा रहा है। जदों समा आउंदा है, कोई मकान छत्तना बैंक विचों कढ़ा लैंदा है, कोई साधन खरीदना कढ़ा लैंदा है, धी पुत्त दी शादी करनी है, पैसा कढ़ा के खर्च कर लैंदा है। ये पैसा खर्च करके वो खुश भी हुंदा है, पर एक थां होर पैसा खर्च हुंदा है जिथे वो चाहुंदा नहीं है, पर करना पैंदा है। जदों शरीर नूं कोई बीमारी लग गई, मेहनत करके 10 लाख रुपया जमा कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा उदाहरण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ही अपने शौक वास्ते अपनी खुशी ना वरत्या, पर शरीर नूं इहो जिहा रोग लग गया कि बाकी 6 लाख ना चाहुंदिआं होइआं भी उत्ते खर्चिआ। फायदा की होया? हुण हुंदा की है? असीं शुभ कर्म करदे हां, सेवा करदे हां, सिमरन करदे हां, बाणी पढ़दे हां, दान पुण्य करदे हां, साडे कर्म स्टोर हो रहे ने। ते जदों आउण वाला समा आउंदा है, असीं गुरु अगे अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह आ दात मेरी झोली विच पा। फिर वो साडी किस्मत रूपी बैंक विचों साडे कर्म खर्च हुंदे ने, कर्म खर्च हुंदे ने, ते वो कर्मां नूं वेख के प्रभु दात दिंदा है। दात वो दिंदा है जिहदे असीं जोग हाँ। कई बार असीं अरदास करते हैं, अरदास पूरी हुंदी, अरदास पूरी पता क्यों हुंदी है? प्रभु तुठदा है ते वेख लैंदा भी ये जोग है।
कई बार असीं वेखो वेखे ऐसी चीज़ मंग लैने जिहदे असीं योग नहीं हुंदे, ते प्रभु साडा माड़ा नहीं सोचदा, कहंदा इहो चीज़ मंग रिहा जिहदे ये योग नहीं, जे वो वस्तु इहदे कोल आ गई इहदा नुकसान होवेगा, वो नहीं दिंदा। पर असीं कहने जी साडी अरदास पूरी नहीं होई, गुरु च ते शक्ति कोई नहीं, करामात कोई नहीं, ऐसा नहीं। सो खैर वो जदों कोई अरदास करदे, मान लो चंगे कर्म सी साडे, चंगी कमाई सी, चंगा मकान छत लिया, बेनती की, गुरु ने कृपा की, चंगी कमाई सी, अरदास की, गड्डी मिल गई, खुशी आई ना, इत्यादक। पर वो कर्म नष्ट कदों होंदे ने, वो बेफालतू खर्च कित्थे होंदे ने, जदों परमात्मा दीआं दित्तियां दातां दा असीं हंकार करदे हां। छत के मकान, वेखो मकान छत्तिया, उस मकान विच रहना मेरे परिवार ने है, मेरे धीआं पुत्तरां ने, मेरे गवांढी ने तो उहदे विच आ नहीं जाना, पर एवें छाती फैलाई फिरनी भी मेरा मकान, आकड़ विच गवांढियां नाल सिद्धे मूँह गल ही ना करनी, रिश्तेदार भुला देने। ये जिहड़ा हंकार है, ये ऐसा रोग है जिहदे उत्ते साडे शुभ कर्म बेफालतू खर्च होंदे, वो कर्म घटदे ने साडे। हंकार साडे शुभ कर्मां नूं खांदा है, हंकार साडी चंगी कमाई नूं खांदा है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजे विकार साडी वो सेवा सिमरन इत्यादक चंगे कर्मां नूं करके कीती कमाई जिहड़ी नष्ट कर दिंदा है। उवें जिवें साडे शरीर ते रोग आउण दे नाल साडी कमाई फालतू चली जांदी, उहनूं फालतू समझदे, हालांकि शरीर तंदुरुस्त हुंदा है। समझ गए होंगे शायद गल। सो खैर लाभ की है, हंकार क्रोध काम लोभ मोह तो बच गई किवें? गुरुदेव कहण लगे मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। तो जो चित्त निर्मल हो जाता है ना, निर्मल पवित्र, ना बंदे दे अंदर ईरखा रहिंदी है। निर्मल चित्त की निशानी की है? इन्हां कन्नां दे नाल निंदिया सुनन नूं जी नहीं करदा, इस जबान दे नाल झूठ बोलण नूं चित्त नहीं करदा, इन्हां अखां दे नाल पराया तन ते पराया धन वेखण नूं जी नहीं करदा, ये पैर माड़े राह ते नहीं चलदे इत्यादक। गुरुदेव कहण लगे महिमा है गुरु की संगत की। एक विद्वान कहता है, कहन लगा बहिए पास बडन के होत बडन स्यों मेल, सभी जानत के बढ़त है बिरख बराबर वेल। कहन लगे वड्डियां दे पास बहिए ना तो वड्डियां नाल मिलाप हुंदा है, बुद्धि उच्ची हुंदी है। सारे जानते हैं कि किसी रुख के लागे वेल ला दी जाए तो वह वेल भी रुख जिन्नी लम्मी हो जाती है, पर जे उही वेल किसी डूंघे टोए के लागे वह बीज रख दिता जाए तो वह धरातल वाल नूं उतर जाती है। इस तरह जो उच्चियां की संगत में बैठिए आत्मक जीवन उच्चा हो जाता है, तो जदों नीवें कर्मां वालियां दे पास बैठिए तो जीवन धरातल वाल चलिया जाता है। इसलिए गुरुदेव कहने लगे महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। हुण गुरु की संगत की महिमा होर की है? गुरुदेव फरमाउंदे हन, पिंगल पर्बत पार परे खल चतर बकीता। पिंगल, पिंगल का अर्थ है जिहड़ा पिंगला है, जिन लत्तां तो जिहड़ा तुर नहीं सकदा। हुण साडे कोल लत्तां ते हैगियां ने, पर साडी सुरत पिंगली होई पई है। पिंगली सुरत की निशानी है कि मायक पदार्थां के लोभ विच भरा भरा दा बनदा नहीं, जिगरा थोड़ा है, दिल थोड़ा है। ये जिन्ने द्वैश ईरखा झगड़े हैं, ਇਹਦਾ कारण है कि साडे कोल ज्ञान दीयां लत्तां नहीं, साडे कोल गुरु की बख्शिश रूपी डंगोरी नहीं हैगी। असीं ठोकरां खांदे फिरदे हां, असीं तरले लैंदे फिरदे हां सुखां दे पास जाण लई, पर साडे वो कर्म नहीं जिन्हां नूं करके असीं सुखां दे कोल पहुँच सकीए। गुरुदेव कहण लगे पिंगल पर्बत पार परे, गुरु की संगत विच आउण दे नाल जिहड़ा आत्मक पक्षों ज्ञान पक्षों पिंगला है, वो इस संसार की औखी घाटी गुरु की कृपा नाल सुखैन तर जाता है। जिहड़े अज कहिंदे ने ना जी सच कित्थे बोलीए, झूठ बोलना पैंदा है, मजबूरी है जी साडी बच्चे पालने, बड़ा वड्डा बहाना है। असल में बंदा झूठ क्यों बोलता है? इन्हां सारियां चीज़ों के पिछे कारण की है? ठगियां मारदा है, निंदिया करदा है, रिश्वत लैंदा है, झूठ बोलदा है, धोखे करदा है, फरेब करदा है, निंदिया चुगली करदा सुनदा है। इन्हां पिछे कारण है डर। डरिया होया बंदा झूठ बोलदा है, ठगियां मारदा है, धोखे करदा है। तो डर किहदा है? अंदर दृढ़ता नहीं, हर वक्त चिंता विच है, जे मैं आ हथ कंडा ना अपनाया तो शायद आ ना हो जाए। तो डर क्यों है? क्योंकि निरभौ की मित्रता साडे कोल नहीं है। तो जे निरभौ की मित्रता होवे तो सतगुरु गरीब नवाज जी कहते निरभौ जपै
सगल भौ मिटै। गुरुदेव भी कहते हैं जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। डरिया होया बंदा ही दूसरिਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ करदा है। यह है ਇਹਦੇ पिंगला होने की निशानी, यह है ਇਹਦੇ लंगड़ा होने की निशानी। तो यही रुकावट है कि यह भाव सागर संसार की औखी घाटी जिहड़ी है ये चल नहीं सकता। गुरुदेव कहते ने अंधले भार उठाया अज्ञानता पिछों अन्ने मनुख ने सिर दे उत्ते पापां की बोझ पंड चुकी हुई है। डूंगर वाट बहुत, डूंगर कहते ने कंडियाली पहाड़ी रस्ते नूं। ते ये जिहड़ी संसार दा कंडियाली विकारां दियां इतिहादक ऐबां दियां झाड़ियां नाल ढकिया होया संसार रूपी पहाड़ का रस्ता बड़ा औखा है। तो ज्ञान के नेत्र मनुख कोल है नहीं। अंधले भार उठाया डूंगर वाट बहुत अखी लो। सो खैर गुरु अखां भी दिंदा है, तो गुरु पहाड़ी रस्ता सर करने वास्ते ज्ञान दीयां लत्तां भी दिंदा है। कह लगे पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता अंधले तेरे भवन सूझिया। अन्ना असल में अन्ना है कौन? गुरुदेव कहंदे वो अन्ने नहीं हैं जिन्होंने अखां तो दिखाई नहीं देंदा। अन्ना असल में वो है जिहदे कोल अखां हन भी पर वो काम अन्नियां वाले करदा है। आपां कई बार तुरे चलीए तुरे जाइए रस्ते ते हुंदा की है कि कोई पिछों लिया के साइकिल मोटरसाइकिल विच मारी तो असीं इहनूं की कहने भला भी की होया? अन्ना होया, दिखाई नहीं देंदा। अखां होण दे बावजूद भी अन्नियां वाले काम करन वाला मनुख अन्ना हुंदा है। अंधे से ना आखिए जिन मुख लोयण नाही। जिन्हां दे मूँह ते जिन्हां नूं प्रभु ने धुरों अखां ने दित्तियां वो असल में अन्ने नहीं। अन्ने वो हैं जिन्हां कोल अखां भी हैं पर काम अन्नियां वाले हैं। सो खैर गुरुदेव कह लगे अंधले तेरे भवन सूझिया गुर भेट पुनीता। पुनीत पवित्र कर देण वाले गुरु का संग करके जिहदे कोल ज्ञान के नेत्र नहीं सन, जदों ज्ञान के नेत्र मिले उन्होंने सब तो पहला समझ आई ओ मना तू किधर ठगियां मारदा फिरदा है, ये जीवन ते बड़ा थोड़ा है। किहड़े पसारे पसारदा फिरदा है, किहड़े खलारे खलारदा फिरदा है। वो जीवन ते 2-4 दिनां दी खेड है। उम्र होवेगी 70 साल 80 साल हद 100 साल, ये तो चुटकी भर विच लंघ जांदे ने, इन्हां नूं कोई बहुता टाइम नहीं लगता। सो सतगुरु गरीब नवाज जी कहते समझ आ गई महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। अगला बचन ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। परमात्मा की भगती विच गुरु जोड़दा है तो वह भगती ऐसी है कि कीड़ी हाथी जित लैंदी। इत्थे कीड़ी की है? निमरता। हाथी की है? हंकार। हंकार विच ही बंदा फूं फां करदा फिरदा है। हंकार ही रिश्तेदारां नालों तोड़दा है। हंकार ही भरावां भरावां विच विथ पाउंदा है। हंकार ही बंदे नूं आंडियां गवांढियां नालों दूर कर दिंदा है। बड़ी माड़ी चीज़ है। हंकार बंदे दे जीवन नूं रस तो रहत कर दिंदा है, फिक्का कर दिंदा है। गुरुदेव कहंदे हर जीओ अहंकार ना भावई वेद कूक सुनावे। जिहड़ा हंकार है वह प्रभु दे दर ते भी परवान नहीं। सतगुरु गरीब नवाज जी कहंदे हौमै नावै नाल विरोध है दोए ना वसै एक ठां। सो सतगुरु गरीब नवाज जी कहन लगे ऐसी भगती है परमेश्वर दी कि फिर वो मनुख के अंदर निमरता आके वस जाती। निमरता करदी की है? निमरता 2 प्रकार की है, ध्यान दे के सुनियो। एक तो निमरता है मजबूरी वस, वो गुरु दर ते प्रवान नहीं। वो निमरता किहड़ी है? जदों मेरे हथ पल्ले कुछ नहीं तो मेरे तो पावरफुल बंदा जिहदे कोल पैसा भी है हर पक्षों जिहड़ा मुकम्मल है तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं उहदे ते निर्भर हाँ। वो बंदा आके मैनू दबके मारे चलो तू इदां कर उदां कर तो मजबूरी बस वो दबके जरी जाने भी ये ते निर्भर हाँ। नाराज़ हो गया कल नूं पैसे की लोड़ पै सकती। ये ऐसी निमरता नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे ने, कहन लगे कि मनुख की हालत की है बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रसियो दसहूँ दिस धावत आसा लाग्यो धन की सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। बंदा सुख की प्राप्ति वास्ते अनेक यत्न करता है तो वख वख बंदियां दी चापलूसी करता है। एक तो यह निमरता है। दूसरी निमरता की है? बंदे दे कोल हर एक शै है, पैसा भी वाधू, अहुदा भी उच्चा, 4 लोकां विच इज्जत मान भी है, पर फिर भी कोई अनजान पुणे विच बुरा भला कह गया, कोई माड़े बोल बोल गया, कोई वधीकी कर गया, कोई ठिब्बी ला गया,
तो फिर भी आखे चलो कोई नहीं, जिन्नी इसनूं मालक ने मत दी सी इन्हें वरत लई, कोई गल नहीं, मेरे सिर ते परमात्मा, मैनूं इहदी कोई परवाह नहीं। ये है असल निमरता, और यही निमरता बंदगी है। सतगुरु गरीब नवाज जी कहते ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। तो सतगुरु गरीब नवाज कहते ने जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। जिन्हों जिन्हों प्रभु ने अपना बना लिया उन्होंने अपै, सब तो वड्डा दान है निरभैता दा। जिहदे कोल निरभैता है उहदे वर्गा सुखी कोई नहीं, उहदे वर्गा आनंददायक जीवन जीवन वाला कोई नहीं। बंदा हर ऐप, हर गुनाह, हर ठगी डर दे अधीन करदा। मैं पहलों भी बेनती कर दी। अगला बचन सतगुरु गरीब नवाज जी कहन लगे, सिंह बिलाई होए गयो, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। सिंह शेर, बिलाई बिल्ली। कहन लगे पहला जदों हंकार दे विच हंकार रूपी शेर दी आगोश विच सी, बंदा किसी नाल सीधी मूँह गल ही नहीं सी करदा, गुरद्वारे भी आउंदा सी ते उस गल दा भी माण, अमृत वेले जागदा सी ਉਹਦਾ भी माण, गवांढियां नूं कहना ते भगती तो रहत ने, बाणी पढ़दा सी ਉਹਦਾ भी हंकार, चार बर्तन मांजदा सी ਉਹਦਾ भी माण, अपने घर विच चार वस्तुआं लिआउंदा ਉਹਦਾ भी हंकार। ਇਹ ਸੀ शेर ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ते सिंह बिलाई होए गयो, बिल्ली बिल्ली निमरता। जदों गुरु की किरपा हुई, गुरु की संगत में आया तो समझ की आई, नहीं ये सेवा मैं थोड़ी करदा, ये तो मेरे वड्डे भाग गुरु की प्रसन्नता। गुरु ने मैनू अमृत वेले जगा के अपने चरणों में लिया है। जेड़े नहीं जागे उन्हां ते गुरु की किरपा नहीं, वो बेचारे तरस के पात्र नहीं, तो उन्हां दी खातर अरजोइयां करदा, मालक आ मेरे गवांढी ते भी किरपा कर दे, इहदा भी जीवन सुधर जाए। मालक आ मेरे धियां पुत्रां ते भी किरपा कर, इन्हां नूं अमृत वेला मिल जाए, इन्हां नूं सेवा मिल जाए। यह है निमरता वाला सुभाਅ। निमरता वाला सुभाਅ जदों कोई चढ़दी कला वाला काम करदा है, उन्ना ही वो निवाणेपन विच रहिंदा है। हर एक गल का क्रैडिट गुरु नूं दिंदा है, हर एक गल का सेहरा गुरु नूं बनदा है। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। ते निमरता का सुभाਅ की है? जिहड़ा हौमे का सुभाਅ है, लालच का सुभाਅ है, बंदा करोड़ापति होवे ना तां भी कहिंदा मेरे कोल ते हैगा ही कुछ नहीं। गुरु की किरपा तो रहत बंदा जिन्ना कुछ मर्जी उहदे कोल होवे कहिंदा हैगा कुछ नहीं, पर जिहड़ा गुरु की किरपा का पात्र बन जाए, जिहड़ा निमरता के घर में आ जाए, जिहड़ा निमरता वाला जीवन बतीत करे, उहदी जेब दे विच भावें 100 का नोट भी होवे तां भी कहिंदा सतगुरु ने बड़ा कोई दिता है। वो भावें रात नूं रोटी मिस्सी खावे, वो कहिंदा गुरु ने बड़ा आनंददायक भोजन दिता है। गुरु की बड़ी किरपा है, हर गल नाल गुरु चितारदा है। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता, श्रम करते आड दाम को ते गुनी तनीता। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ वास्ते ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ सन, भाव छोटी छोटी वडियाई प्राप्त कर लई, छोटियां छोटियां वस्तुआं प्राप्त कर लई मेहनत उद्यम करते सन। गुरु दे लड़ लगे, गुरु ने ऐसी आत्मक तृप्ति बख्श दी, गुरु ने ऐसी आत्मक संतुष्टि बख्श दी कि अंदर रज गया। अंदर हुण भुखा नहीं, हुण किसी पराए का हक खाण की मनशा नहीं उठती, हुण किसी दूजे का खोण की मनशा नहीं उठती। रजिया होया सगों किसी आप भावें अद्धी खावे तो दूजे का ढिड भरन की अंदर चिंता लगी रहिंदी। भगत की है? दूसरिਆਂ ਦੇ सुखां नूं वेख के खुश हुंदा है ते दूसरिਆਂ ਦੇ दुखां नूं वेख के दुखी हुंदा है। ये भगती है और ये दयादात मिलती है सतगुरु के पासों। तो गुरुदेव अखीर ते जाके कहिंदे ने कर किरपा मोहे दान दिओ। कहन लगे कवन बड़ाई कह सकों बेअंत गुनीता। हे बेअंत गुणा दे मालक परमेश्वर, मैं तेरी मुकम्मल वडियाई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जुबान एक है, जेहवा एक, कवन गुण कही है बेशुमार। बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन ही लही है, तेरा अंत कोई पा सकता है नहीं। इस वास्ते कवन वडाई कह सकों बेअंत गुनीता। कर किरपा अपना नाम देहो नानक दर सरीता। सरीता का अर्थ है गोला। नानक तेरे दर दा गोला है, तेरे दर दा दास है, तेरे दर दा चाकर है। किरपा करके मेरी झोली दे विच अपना नाम पा, क्योंकि ये सारियां रहमतां, ये सारियां बख्शिशां नाम तो मिलदियां हन। जिहदे कोल नाम है, जिहदे कोल गुरु की संगत है, उन्होंने बाकी किसी दौलत की लोड़ नहीं, क्योंकि बाकी सारियां दौलतां इस नाम धन तो पिछे हैं। बाकी दौलत के पिछे पिछे भजी फिरदी है, क्योंकि जिहदे कोल रब आ गया। भगत फरीद जी पता की कहते हैं, मैं समाप्ति वाले पासे हुण आउण लगा। इक्को ही तरीका है कि साडे कोल नाम आ जाए, गुरु की बख्शिश आ जाए।
भगत फरीद जी ने सवाल किया है, प्रभु कोई ऐसी किरपा हो सकती है कि तेरे नाल एक मेक हो जा, तेरा दर छुटे ना। फरीद जी एक हो सकता है काम, अपने आप नूं सवारना शुरू कर। जदों तू आपा मैं अपना हिरदा ही गंगा की तरह पवित्र कर लिया उहदे नाम दे नाल, वो परमात्मा तो मेरे पिछे पिछे फिरदा है। क्यों कि कबीर दस, जिस परमात्मा अगे तू डिमांडा करदा है, अरदासां करदा है, मंगा रखदा है, वो परमात्मा मैनू पुछदा है कि कबीर तेरी कोई मंग है तो दस, मैं पूरी करनी चाहुंदा। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै, कहत कबीर। कबीर सिमरन दे नाल जुड़ जाइए, गुरु दे नाल जुड़ जाइए, अमृत छक लईए, अमृत वेला सामना शुरू कर दईए। पंजां बाणियां दा नितनेम सवेरे होवे, 2 बाणियां दा शाम नूं होवे, सारी दिहाड़ी 10 नौवां दी किरत होवे, गुरु नूं हाज़र नाज़र जान के जीवन जीउण वाला होवे, ओदी फिर जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, ओदी जय जयकार हुंदी है। सो सत संगत जी अखीर ते ही बेनती, ये जिहड़ा उपराला किया गया है, ये इस वास्ते है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब सितंबर महीने में आ रहा है। साडे पंजाब दे विच नशियां दा हड़ ठाठा मारदा फिर रहा है, नौजवान कुराए पे ने, कोई उलांभा दिंदा जी साडे कोल रोजगार है नहीं, साडे कोल प्लेटफार्म है नहीं, है सारा कुछ इस पंजाब की धरती ते, पर उन्हां चीज़ां नूं पछाणन वाली साडे कोल सुरत है नहीं, क्योंकि सुरत दे उत्ते केवल ते केवल दौलत का नशा छा गया, ये तो पड़दा पै गया। तो गुरु की बाणी नाल जुड़ के, गुरु के संस्कारां नाल जुड़ के ये पड़दा मत तो चुक्या जा सकता है। तो जदों इस मत तो पड़दा चुक्या गया ना, चेते रखियो फिर यही पंजाब की धरती सानू सोना उगलण वाली, हीरे मोती उगलण वाली नज़र आ जानी है। क्योंकि हाले साडे सुभाव विच हंकार है, हाले सानू वो चीज़ां की प्राप्ति की इच्छा है जिहड़ियां सारा संसार कर रहा है। सो खैर, एक असीं अपने विरसे नालों टुट रहे हैं, गुरु की बाणी नालों, एक असीं नशियां की दलदल विच हटदे जा रहे हैं, एक दंभियां पखंडियां दे पखंड जिहड़े ने वो साडे उत्ते हावी होए पए ने। ये सारे जाल केवल गुरु की बाणी ते गुरु का बाणा तोड़ सकता है। इसलिए गुरु के पुत्रों ते धीओ अमृतधारी हो के जीओ। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित वख-वख नगरां विच ये समागम आरंभ किए गए हैं। ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ जी USA वालियां दे सहयोग दे नाल बड़ा वड्डा उन्हां दा उदम है। लॉकडाउन के दिनों में उन्होंने लोड़वंद ग्रंथी सिंह, रागी सिंह, ढाडी कवीशर उन्हां दे घरां विच राशन पहुँचाया। लोड़वंद परिवारां दी किसी का इलाज करवाउंदे ने, किसी की किस तरह हैल्प करते हैं। तो यही उन्हां दा भी उपराला है कि पिंड पिंड जाके प्रचार किया जाए, निष्काम किया जा रहा है। ये जिहड़े ढाडी सिंह ने, कवीशर ने, चलो साडा तो असीं ते कथावाचक रागी सिंह गुरु की कृपा दे नाल जिस तरह भी संगत मान सन्मान करती ठीक है, कोई मूँहों डिमांड नहीं, पर इन्हां सिंघां नूं संगतां बुलाउंदियां ने, मूँहों पेशकश करदियां ने, 10-10 15-15 हज़ार रुपया लैण वाले ने। पर इन्हां दे मन विच भी ये ख्याल आया कि जिस गुरु दे नाम तो असीं कमाई करदे हां, असीं क्यों ना आ 2-2.5 महीने गुरु की खातर फील्ड विच लाइए, निष्काम लाइए, ताकि गुरु की कृपा के पात्र होर भी लोग बन सकन। सो इस वास्ते भलिओ ये सारा उदम उपराला भाई इंदरजीत सिंह, ज्ञानी इंदरजीत सिंह जी USA वालियां ने किया है। सो आप संगतां दे चरनां विच जिहड़ी बेनती है कि अज हाज़री है, कल नूं फिर आप जी दे नगर विच दीवान है, तो आप जी ने कल नूं होर वध चढ़ के हाज़री इत्थे लवाउणी, होर भी संगतां नूं प्रेर के लियाओ। आप जी दे गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग आलीशान है, वेख के मन बड़ा खुश होया। तो कल नूं हाज़री इनू भी आलीशान होनी चाहिए है। अज भी बहुत हाज़री है, गुरु ने बड़ी कृपा की है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। हुण मेरे तो बाद भाई साहब भाई ज्ञानी गुरजीत सिंह जी माणो चाल दा ढाडी जथा फतेहगढ़ सुभरावां वाले, वो आप जी के सन्मुख हुण ढाडी वारां द्वारा हर जस सरवण करवा के आप संगतां नूं निहाल करनगे। दास दियां इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी, रागी जसबीर सिंह जी खडूर साहब वाले, ये प्रबंधक ने, इन्हां दे उदम सदका, क्योंकि भाई इंदरजीत सिंह होना ने इत्थे पंजाब च इन्हां दी ड्यूटी लाई कि तुसीं प्रबंध करो, अगे चल के नगरां विच यही प्रबंध करते हैं। सो अमर संचार की जिहड़ी मैं बेनती की सीगी, अमर संचार 1 अगस्त दिन ऐतवार नूं पिंड मालचक जिला तरनताਰਨ खडूर साहब रोड ते स्थित पिंड है, उस नगर दे विच अमर संचार होण जा रहा है।
सो बेनती है, लाइव भी चल रहा है, जिथों जिथे संगतां घरां विच बैठियां सरवण कर रही हैं, ਜਿਹੜੇ भी अमृत बिलाकी अमृत छकण ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ नगर मालचक ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਟਕਸਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।